Himjab, here we were ended in a last session. Good morning. So you are doing the fourth module. Ajay? So fourth module we were doing. So that's true. We were in fourth module. What we were discussing in fourth module? Smaller for okay. Differences. Just a minute. The LAN and that we're discussing. Yes, yes, yes. Because right now I am revising as well in other sections. So yes, we finished the disadvantages of LAN. Now we need to start from metropolitan area network. Quickly let me know when my screen is visible. So it's visible. Yeah, thank you. So LAN we already finished through LAN. Okay, thank you, Neha. And if your exam was good, it's all of your efforts, your preparation, your contribution, your attentiveness. Your in the sense the entire class I'm talking about. I have done my job, but you people followed those instructions. It's credit goes to you people. Okay, so LAN we discussed the local area connections. That means a group of computers connected together to with the capacity of exchange of information on a geographical spread. When things in a limited area, we call it as a LAN. Once we improve that geographical spread in, you can say, in a larger scale level, then this definition start changing. So the metropolitan area is a space or area network. It could be a network that interconnects user with PC or resources exceedingly geographical space or a region larger than the lined by even the organized local area network. So when you can say the small lanes combined together with a larger geographical area called as a one city, you can say, even by itself named the metropolitan. For example, your cable connection that is spread across the city. Am I right? You may GTPL kind of, I heard those names. So local city level connections. So these connections are spread across the city. So these connections or these type of a connection is called the metropolitan area. Sometimes we also get the connections in a local cities with these sort of platforms.
So the term is applied to a interconnections of network in a exceedingly town into one larger network. That's town, sometimes for example Rajkot, and that is spread to, let's say, a Madhapur, or till Marwadi University or a Bedi, so surrounding or a suburban cities or the area as well. These all connected city surrounded area, you can say, or sub areas of a city, these all connected, then that is called as a metropolitan area, whether it's a wireless or in a wired form. Look it. So let's say a one colony and then the entire city. So instead of a Soho, that's an international firm, the foreign example, you can call it GTPL. GPTL or GTPL? What's the correct name of it? GTPL. Thank you, Neha. So they are connected. Right now it's showing as a wireless, that possible through the wired as well. So all the buildings, houses, industries, inputs, they all are connected together. So such kind of a network is called as a metropolitan area network. And there is someone, those who are controlling the exchange, we call those who control it in the form, in a digital form. इसीलिए आपने सुना होगा कि जैसे किसी शहर में ही पूरा इंटरनेट बंद कर दिया, पूरे कंट्री का नहीं किया, बट कहाँ के एक शहर का। जैसे आपने देखा होगा अहमदाबाद में जब पाटीदार आंदोलन चल रहा था, तो क्या नाम है इसका, जिग्नेश वगैरह, और जो अभी कांग्रेस में चला गया है वो लड़का, इन लोगों ने एक किया हुआ था आंदोलन अहमदाबाद वगैरह में। आज बहुत टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए होंगे। हाँ, हार्दिक पटेल। तो ये रिजर्वेशन के लिए चल रहा था। तो उस टाइम पे इन लोगों ने बहुत डिस्टरबेंस किया, तो पूरे अहमदाबाद में 2-3 दिन के लिए इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया था। तो वो सिटी लेवल पे कैसे हुआ? दैट मीन्स देयर इज a certain platform available through which the government can control those particular things. In 370 and 35A आपने अभी सुना ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर वाला केस, तो वहां पे भी ये दोनों ही चीजें अप्लाई हुई। अभी ये कुछ टाइम पहले की ही बात है ना? Yes, Manish. It's many times that my objective. I will discuss you in coming times as well what exactly these exchanges are and how they operate. I just introduced that they have the control over it as well. Uh, they all are connected, because let's say you are using your mobile, that's also somewhere you are having your local connections, your own PC. So these local is creating the larger form, but not necessarily there must be. For example, your mobile is your individual unit, not a part of any organization. When I use my laptop for my purpose through my internet, that's an individual unit. But when I connect it through the Marwadi University's internet, their own LAN cable, that's a part of the LAN. There I will provide the various input. Let's say the assessment of answer sheets, that's going through the LAN. Is it clear? Device is same, but where I am getting connected. If I am in Marwadi University and connecting through their Marwadi University local network, then obviously I will be the part of LAN. In that time, if I am using the internet as well, so I am a part of a larger area network. That's a wide area network as well. In that time, I am a part of a LAN, then I am a part of a MAN, and then I am a part of a WAN. That's a depend on. Am I right? No line, that means it's only on a LAN or only on an individual unit. That's not a case. So now you can improve or increase from this level to the higher level.
Wide area network, that's the network, like I said, the local area, then the local connected to the city, that's called as a metropolitan area. When these metropolitan areas or the cities connected to the other countries or other states, then the countries, then it's called as a wide area network. Now one thing, even before moving towards the wide, in main we discuss about the lane. In lane we discuss about the advantage and disadvantages. In last session as well I told that the as soon you grow, as per the advantage and disadvantage side, whatever the advantages you are having in lane, they will start getting down because you are moving in a larger scale. So speed will go down, your control will go relatively not that much control, as you have the full control over your lane. So cost, speed, control, clear technology, dependency, these are things are going to be down. Whereas your disadvantages, the disadvantages of a lane is again going to increase because these things are not in your control. Am I right? Again, so disadvantages is going to be increased one by one. So in a wide area network, so wide area network, a network that connects two or more local area networks over a potentially large geographical distance. For example, आप मैच देखते होंगे, मैच का लाइव आता होगा, तो किस तरीके से देखते हैं मैच का लाइव? सपोज ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच हो रहा है, पर्थ क्रिकेट ग्राउंड है, पर्थ सिटी का नाम आपने सुना होगा, या मेलबर्न में हो रहा है, जो भी सिटी आपको याद हो, सिडनी में हो रहा है, जो भी याद हो आपको, वहां पे मैच हो रहा है, वो एक सिटी है। आप वहां पे बहुत सारे कैमरेज होंगे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, ठीक है। वो रिकॉर्ड करके जो प्रमाइसेस है मेरा मतलब जो पर्टिकुलर स्टेडियम है वहां पे 850 जितने भी कैमरे लगे हैं, उनसे एक जगह पे सारी चीजें गैदर हो रही होंगी। उस गैदरिंग के बाद वो चीजें आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी सिटी लेवल से वो कहाँ चले जाएंगे, उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर पर जो इस चीजों की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे, वहां से फिर वो प्रोवाइड हो जाएंगे कहाँ पे, आपके सैटेलाइट से कहाँ आएगा, आपके डायरेक्ट टू होम या केबल से फिर वो आपके घर आएगा। इतना लंबा प्रोसेस मैंने एक दिन और शायद बिगनिंग में भी एक्सप्लेन किया था। ये सारी चीजें कैसे हो जा रही हैं, एक पलक झपकते ही, तुरंत से, और ये अवेलेबल हो रहा है आपको ऑन द स्पॉट, काइंड ऑफ जो रियल टाइम पे आपको लग रहा है कि अरे हाँ ये मैच हो रहा है, ये लाइव चल रहा है, ये बॉल हो रही है ना। तो ये जो कनेक्शंस हो रहा है, ये कहाँ पे, छोटा सा लेन जो था किसका, एक स्टेडियम का, उसके बाद उस सिटी का, सिटी से कंट्री के, जो सिटी का हुआ तो मेट्रोपॉलिटन, वहां से जो आया किसमें, जो आप कनेक्ट हुए सैटेलाइट या अदर के थ्रू, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, इनके थ्रू आप ये कनेक्ट हुए। ये कनेक्शंस किसके थ्रू होता है, गेटवेज के थ्रू होता है। तो गेटवेज को भी हम आगे अभी समझेंगे कि गेटवेज क्या होते हैं। पहले भी हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से एक से दूसरे में कनेक्शंस होते हैं, तो हम गेटवेज में आ जाते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क इज कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग। व्हाट इज कॉल्ड, इंटर नेटवर्किंग। So look at here. Now you are having satellite, GPS, then your own stations from through which you are connecting or spreading. Then you can say any other country, there the particular cricket match, stadium, whatever it may be, the things are going on. And then you are connected with the various other parts of the city. So different countries, they are having the information, they are connected through internet or another medium, and then they are sharing or spreading that particular information. Wired, wireless, satellite communication, whatever it may be, the forms available. यहाँ पे क्लैरिटी बना कि नहीं बना?
Manish is asking, sir, so when can we distribute it as a collection of various? Yes, why not? Manish, I already told, individual or a lane, once they connected, they are creating the, once it's in the city level, they are called as a man. And then once it's connected to the country level, another country, that's called as a man, wide area network. There is no as such bifurcation, it's a geographical distribution, and geographical as well. There is no written label, you can say Rajkot is a one city, but Mumbai is a very big city. Still both are called as a man. Am I right? And so Himza again, sir, what is the huge building boarding land as? They are the example of a foreign cities, because our book which we are referring is, it's a foreign author book, so they are having the example of that. So you can call your own one. Am I right? And when they are using the different kind of a land, that's their own network. Am I right? Their own networks, their own other technology, these are kind of a form. It's clear. So you can just understand, it's in a London, that's a Washington, that's in a Dallas, again USA, Texas, I think that's in a South America, right? And then they are connected through the various different kind of a technology, and then they are connected together. Right? So don't look on those words, just look the one country lane. What I still told to you, I use the common name which you are aware about. I told cricket, then I told Australia, then Perth, Melbourne, Sydney. I hope you people are very well aware. Then there are particular matches going on, then how we are getting that supply of that particular live telecast of a match through those connected network only. I hope things are clear. Now, whether you are watching it in your mobile or on a TV or on a different platform, that's create the different meanings. Okay. Now these things are very small, and now again the advantage and disadvantages. In LAN you are having full control, in WAN almost negligible control you have, because ये आपके अपने बस की बात नहीं है, अब तो पूरे रूप में ये फैल गया। जैसे आप देखें कि इंटरनेट, तो इंटरनेट पे बहुत बड़ा कंट्रोल नहीं देखते होंगे आप। कंट्रोल कहाँ है? गवर्नमेंट लेवल पे कह दो कि एक लिमिट में, फिर भी गवर्नमेंट ये कह दी कि भाई ये वेबसाइट इंडिया में नहीं खुलेगा, ठीक है, या ये एप्लीकेशन इंडिया में, जैसे चाइना के कुछ चीजें बैन की, इतने तक आप कर सकते हैं। बट एज सच आप बड़े ब्रॉड लेवल पे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा समुद्र है भाई, कहाँ तक कितनी चीजों को गवर्नमेंट देखेगी। जो गवर्नमेंट को समझ आ गया, पकड़ में आ गया, किसी ने बता दिया, करोड़ों अरबों वेबसाइट्स हैं, किसको पता किस में क्या चल रहा है, बहुत चैलेंजिंग है। तो गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड ही फॉर्म है। जैसे अब मारवाड़ी चाहे कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, वो कहेंगे नहीं भाई नेट नहीं चलेगा, खत्म। सिर्फ यहाँ कौन सी चीजें चलेंगी? जो मारवाड़ी की हैं। तो अगर इंटरनेट नहीं भी होता है और अगर हम नेटवर्क पे होते हैं, तब भी हम आपकी अटेंडेंस मारवाड़ी की वेबसाइट के थ्रू आपके अटेंडेंस को डाल सकते हैं। कोई नेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसी नेटवर्क में बैठे हैं, तो अब इंटरनेट की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अगर मैं अपना नेट ऑन ना भी करूं और मारवाड़ी की वेबसाइट ओपन करूं, मारवाड़ी का पोर्टल ओपन करूं, सारी चीजें हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसी नेटवर्क में ही हूं ना, तो मुझे तो इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, गेटवे या अदर चीजों की जरूरत ही नहीं है। मारवाड़ी चाहे तो पूरा कंट्रोल कर सकता है, कहाँ? अपने लेवल पर, क्योंकि वो लोकल एरिया है। और सिर्फ मारवाड़ी में नाम ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी जो लोकल एरिया है, दे हैव द फुल कंट्रोल what exactly you will watch, use, assess, everything. Clear? User label defined, capacity defined, speed, many things are there they can control.
because they are the local administrator and they themselves developed it. So these are the disadvantages. Speed obviously will become slow irrespective of the technology you are using. जो स्पीड जैसे मैंने पहले ही बताया था लेन के टाइम पे कि आप मारवाड़ी की वेबसाइट से लाइब्रेरी की वेबसाइट से कोई वीडियो डाउनलोड करिए नेपटेल का मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ इंटरनेट या उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है सेम चीज़, तो कंपैरिजन आसानी से आप कर सकते हैं। नहीं तो दूसरे में कहेंगे सर ये वीडियो अलग है वो वीडियो अलग है, सेम चीज़ सेम क्वालिटी दो प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके देखिए आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आपको लगेगा ये तो 4G 5G की भी स्पीड से भी ज़्यादा है। किसको? जो अभी मारवाड़ी प्रमाइसेस में है या लाइब्रेरी क्या बोलते हैं हॉस्टल में है, वो ये एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, तो उनको ये चीज़ समझ में आ पाएगी कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्पीड का कैसे फर्क पड़ता है। और जब आप आएंगे वाइड एरिया नेटवर्क पे तो कंपैरेटिवली स्पीड स्लो होगी। ये बात अलग है कि अब हम 4G 5G को यूज कर रहे हैं तो स्पीड फास्ट हो गई है, बट फिर भी कंपैरेटिवली स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। ठीक है, कंट्रोल कम होगा, कॉस्ट लेन में ज्यादा लगती है, वाइड एरिया है इन सब में कलेक्टिवली कॉस्ट थोड़ा सा कम लगता है क्योंकि आपका एज सच उतना होल सोल कंट्रीब्यूशन तो होता नहीं है, ये तो सभी के अलग अलग कंट्रीब्यूशन से मिलकर ये चीजें बन रही होती है। तो उस फॉर्म में अगर देखेंगे तो कॉस्ट क्या हो जाती है कंपैरेटिवली पर यू कैन से द यूजर बेसिस पे थोड़ा सा कम हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेन की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा है, वैन की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब मारवाड़ी का सर्वर अगर नहीं चलेगा तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मारवाड़ी पे आ जाएगी लोकल एरिया। अगर गूगल का सर्वर नहीं चल रहा है तो गूगल पे आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आप पे नहीं आएगी क्योंकि गूगल को अपना बिजनेस रन करना है। तो गूगल पर ही करेगा कि यार मेरे को अपना ये नेट ठीक करना है या अपना सर्वर ठीक करना है, बहुत सारी चीजें। हम आप पे कोई प्रेशर नहीं आएगा कि यार ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या करें या क्या ना करें। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है बंधुओं? नेहा जी ने तो बोल दिया, मनीष ने बोल दिया। चलिए तो अब हम आते हैं कैंपस एरिया पे। तो ये सारे अब जो बाइफरकेशंस हैं ये लेन के ही अलग अलग तरीके से बाइफरकेशंस हैं, अदरवाइज मेजर क्राइटेरिया तो वो तीन ही थे जो हमने डिस्कस किए। तो कैंपस एरिया वही लेन को फॉर्म में, जैसे हम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस को हम कैंपस जनरली बोलते हैं, या किसी प्रेमाइसिस को हम बोल देते हैं कि यार उस कैंपस में, बिल्डिंग के एरिया को भी हम कंपाउंड या कैंपस बोल देते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन। तो कैंपस एरिया नेटवर्क वही है जो छोटी सिटीज या बिल्डिंग्स जो हैं जो आपने कनेक्ट किया हुआ है। हो सकता है आपने नेट भी दिया हो, जो मारवाड़ यूनिवर्सिटी है, हो सकता है ना भी दें, डिपेंड करता है किस टाइप का नेचर या बिजनेस है, तो इंटरनेट देना है या नहीं देना है। इसकी डिटेलिंग हम आगे भी पढ़ेंगे, नेट इंटरनेट क्या होते हैं चीजें। तो ये कैंपस एरिया हो जाएगा। मारवाड़ यूनिवर्सिटी के लेन को भी आप क्या बोल सकते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं, एज सच उसमें कोई इशू नहीं है ना, उसको भी कैंपस एरिया नेटवर्क बोला जा सकता है। पर्सनल एरिया ये तो सभी ने यूज किया हुआ है। अच्छा ये बताओ, अभी मैं आगे नहीं बता रहा हूँ किया है कि नहीं किया है, अगर आप इसी फॉर्म में बोलें, क्या आपने कभी अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट के थ्रू नेटवर्क शेयर किया है? क्या आपने कभी ब्लूटूथ स्पीकर्स या वाईफाई और ब्लूटूथ हेडसेट ईयर पिक्स यूज किए हैं? क्या आपने कभी ब्लूटूथ कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इन चीजों को कभी यूज किया है? अगर हाँ, दैट मीन्स यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। स्मार्ट टेलीविजन हैं तो आपने उसमें भी यूज किया होगा। आपने जियो का जियो फाई का नाम अगर सुना हो, सुना है क्या जियो फाई?
तो जियोफाई में हम क्या करते थे, एक डिवाइस घर के सारे सिस्टम्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेलीविजन, मोबाइल फोन सब कनेक्ट कर लेते थे और हम शेयर करते थे उसमें। और उस जियोफाई में अगर आपने कोई डेटा कार्ड लगा दिया है तो उस डेटा कार्ड में जो भी सॉन्ग्स हैं, मूवीज हैं, वो भी सब लोग एक दूसरे से या डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पर उसको वॉच कर सकते हैं। शायद कभी आप लोगों ने किया हो या नहीं किया हो तो एटलीस्ट सुना होगा इसके बारे में। This you just remember in your, you can say, register in your brain. This is the main bifurcation. Len, men and when. So these are all about the network. तो इन पांचों नेटवर्क में कहीं पे भी अगर आपको कोई इशू लग रहा हो तो आप बताइए। दे नेटवर्क, their advantages, their disadvantages in a normal sense, not in a greater detail, and how the exactly we are getting the benefit of it. अब जैसे आपको ये लेन दिख रहा होगा तो ये बिल्डिंग है, प्रोमाइसेस हो सकता है इसके एक फ्लोर पे 5 फैमिली रह रही हूँ, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क शेयर कर रहे हो सकता है कि इस बिल्डिंग में कुछ और कम्युनिटी या अदर और बिल्डिंग्स एसोसिएटेड हों, तो वो एक अपना कैंपस बना लिया उन्होंने, तो वो कैंपस एरिया बोल रहे हो। कंबाइंडली आप बोलेंगे तो इसको लैन भी बोल सकते हैं कि ये लैन है। ये लैन जब कंबाइंड सिटीज में जुड़ जाएंगे तो मैन बोल देंगे। ये सिटी लेवल के जब कनेक्शंस अक्रॉस द कंट्रीज हो जाएंगे तो मैन बोल देंगे, वैन बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। क्विकली एक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे और समझेंगे, दैट्स कॉल्ड एज अ गेटवे। कनेक्शन, कनेक्शन, कनेक्शन इन, जैसे आपने देखा होगा रिले रेस, आपने देखी है क्या या सुना होगा रिले रेस? देखा हो या सुना हो तो छोटा मोटा कोई भी आइडिया अगर आप शेयर कर पाए। नहीं सुना है, ठीक है। रिले रेस में क्या होता है? हाँ, नेहा कुछ बोल रही है। हाँ, 1 पर्सन विल रन एंड पास 2 सेकेंड। हाँ, आपने देखा होगा एक छोटा सा स्टिक लेके दौड़ता है, तो ग्रुप जैसे होता है, जब अपन बोले चलो 2 लोग हैं, तो एक पर्सन दौड़ेगा, पूरा एक राउंड लगा के आएगा और जहां से वो स्टार्ट किया था वहीं पे एक दूसरा पर्सन खड़ा होगा, वो उसको वो स्टिक पास कर देगा। जैसे ही वो स्टिक कैरी करेगा वो दौड़ने लगेगा दूसरा पर्सन, तो ये कहलाता है ऐसे रिले रेस काइंड ऑफ। तो ये एक अपने आप में नेटवर्क है, ये एक अपने आप में नेटवर्क है। इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो अपने को राउटर्स के साथ उन नेटवर्क के बीच में एक एस्टैब्लिश कनेक्शन चाहिए पड़ेगा। यही एक्चुअली हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है कि जैसे ही हम जैसे आपका मोबाइल है, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, नॉट ऑन करेंगे, तो आप देखते होंगे आपके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आने लगे, ट्विटर के आने लगे, यूट्यूब चलने लगा, बहुत सारी चीजें होने लगती होंगी। जब तक नहीं किए तब तक कुछ नहीं होता है, ऐसा ना, मोबाइल पे ही। as soon you connected you through the net, that means you are a part of the whole universe. अब जिन जिन चीजों को आपने अपने में रखा हुआ है वो तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे, कहाँ? बाकी दुनिया से, बाकी वर्ल्ड से, बाकी नेटवर्क से। तो जैसे ही आप कनेक्ट होंगे तो आप कनेक्ट किससे हो जाएंगे? व्हाट्सएप के सर्वर से, क्योंकि आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में और आपने इंटरनेट यूज किया तो एक गेटवे बन गया, वहां से वो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। अब कोई दूसरा मेंबर जो व्हाट्सएप पे है वो आपको अगर मैसेज करेगा, तुरंत आपके में अपडेट आ जाते हैं। होता है ना ऐसा?
ये तो नेचुरल रेगुलर प्रोसेस है और ये सब आप बहुत अच्छे से समझते भी होंगे। So that is called actually the gateway, the proper standard form through which you are connecting to the different network. That's why इसको सर्कुलर फॉर्म में बताया गया कि ये एक नेटवर्क है, ये एक दूसरा नेटवर्क है, इनको आप कनेक्ट कर रहे हैं। एक को भी कनेक्ट किया तो करंट या इंफॉर्मेशन किस पे जाने लगेगा, सभी पे। ठीक है, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के सर्वर पे लैन दे दिया जाता है, उसके थ्रू बाकी सब पे लैन इंटरनेट दे दिया जाता है, बाकी पे वो चीज सेम चलने लगती है। Then types of networks, that means how exactly you will configure or connect your different devices. So basically three different, and I'm not saying the only the three, there are two modes available, matrix and mass kind of, but basically there are three type of topologies: ring, star and bus. How they are, I'm just explaining through the next slide, so don't bother about that content, that's already available. But look at here, but ring, star and bus topology. So ring, just look at how systems are connected, just observe it first, how they are connected. Yes, in all, you just look all these three. So in a ring, they are connected through each other. Am I right? They are connected to each other one by one. The ordering is mattering here. Clear? कि ऑर्डर जो है एक दूसरे से कनेक्शंस करते हुए जा रहा है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे को लिंक जैसे भेजता जा रहा है। जैसे आपको याद होगा बचपन में आप खेलते होंगे रिंगा रिंगा रोजेस करके, जो पोएम वगैरह हैं जो आप बच्चों में देखा होगा आप लोगों ने, कैसे हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं बच्चे और फिर राउंड राउंड घूमते हैं, है ना। अब in this, the communication as well between these system will happen in either form, either clockwise or anti clockwise. जैसे इस सिस्टम को, अगर इस सिस्टम से कुछ कम्युनिकेट करना है, डेटा एक्सचेंज करना है, और इसने फॉलो किया हुआ है क्लॉकवाइज, तो कैसे फॉलो होगा, इस सिस्टम से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर इसके पास आएगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज किया हुआ है तो डायरेक्टली पहुंच जाएगा। नाउ बिहेवियरल सेंस में कैसे होता है, दिस इज जनरली रिक्वायर्ड इन अ हायरार्किकल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आप लोगों की कुछ अगर रिक्वायरमेंट्स हैं या पॉजिटिव कुछ न्यूज है या कोई चीज है, हाउ यू विल कम्युनिकेट टू द टॉप मैनेजमेंट। जनरल जो प्रोसीजर मारवाड़ी में फॉलो होती है वो कौन सा, कि स्टूडेंट्स किसको कम्युनिकेट करेंगे, सीआर को, क्लास रिप्रेजेंटेटिव को। क्लास रिप्रेजेंटेटिव किसको कम्युनिकेट करेगा, सीसी, क्लास कोऑर्डिनेटर, फैकल्टी को। क्लास कोऑर्डिनेटर फैकल्टी किसको कम्युनिकेट करेगा, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को। ठीक है, प्रोग्राम हेड को। प्रोग्राम हेड किसको करेगा, डीन को। डीन किसको करेंगे, रजिस्ट्रार या प्रोवोस्टर को। ये एक ऑर्डर हुआ। तब इसमें ये नहीं होगा कि अरे सर इतना कौन बोलेगा, एक न्यूज थी और मैं तो मारवाड़ी के थर्ड फ्लोर पे ही अवेलेबल था और मैं पास ही हो रहा था वहां से, जहां से वीसी का ऑफिस बिल्कुल 2 कदम दूर था, तो मैं डायरेक्ट वीसी के रूम में चला गया और मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। बिहेवियरल फॉर्म में आप कर भी दें तो ये तो गलत ही एक प्रकार से, एक आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट ये ऐसा सिस्टम में ऐसा नहीं है, अगर आपने ये डिफाइन किया हुआ है कि ये इसी ऑर्डर में ही चलेगा, साइक्लिक फॉर्म, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो देन दिस विल फॉलो इन द सेम फॉर्म ओनली। क्लियर? समझ आया कुछ? So whenever you require the hierarchical structure or order, then only it will be
applicable, or you can say the forward or a follow. ठीक है, इसको कई मैकेनिज्म के फॉर्म में यूज किया जाता है. नाउ सेकेंड वाले को अभी समझे हम. स्टार. स्टार में क्या ऑब्जर्वेशन है आपका कि देयर इज अ वन सेंट्रल सर्वर और अ सिस्टम थ्रू विच ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड. दिख रहे हैं, एक सेंटर में है और उससे बाकी सब कनेक्टेड है. ठीक है, अब आपको एग्जांपल दें, आपने कभी एटीएम जहां पे लगे हुए हैं उसके ऊपर देखा है क्या? जैसे एक छोटा सा वो है, अपने मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में ही है, बैंक ऑफ इंडिया का, अगर देखा हो तो कभी आपकी नजर अगर गई हो ऊपर, तो जस्ट उस एटीएम मतलब रूम के ऊपर ही आपने देखा होगा एक डिस एंटीना लगा होगा. एंटीना लगा देखा है? छतरी बोलते, गुजराती में क्या बोलते मुझे नहीं आइडिया है. कहीं का भी देखा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मारवाड़ी का ही देखा तो यस बोले या नो बोले. कहीं देखा है कि नहीं देखा है भाइयों? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है. अच्छा, अरे बाप रे, इतना पुअर ऑब्जर्वेशन है. नेहा, अब लॉकडाउन के बाद कभी भी जब बाहर निकलो, इस चीज के लिए मत निकलना, मैं ध्यान से कह रहा हूँ. ठीक है ना? नहीं तो बोलोगे नहीं सर ने बोला था कि ये देख के आना है. जब बाहर जाना हो तो एटीएम्स के ऊपर देखना, आपको डेडिकेटेड का नेटवर्क होता है उनका. वो नॉर्मली लैन वगैरह से नहीं रहते हैं, डेडिकेटेड उनका कनेक्शन होता है सैटेलाइट से. वो सैटेलाइट से नेट लेते हैं ताकि कहीं कोई बीच में आके चीजों को चुराए ना या डिस्टर्ब ना करे. तो उनमें क्या रहता है, वो एंटीना लगे होते हैं. वो चीज जैसे ही आप कार्ड इंसर्ट करेंगे, आपका किसी भी बैंक का कार्ड हो, आप किसी भी एटीएम में जाए, तो सबसे पहले क्या होता है, कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, आपका नेम वगैरह डिस्प्ले आता है, तुरंत वो आपसे पूछता है कि भाई पिन आप डालिए. आगे पीछे भी पूछ सकता है, मतलब ये नहीं कि नहीं सर वो मेरे वाले में तो पहले आगे तक ले जाता है, जब हम मैं पैसे विड्रॉ या कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ तब पूछता है, कुछ भी स्टेज हो. तो आपसे क्या पूछेगा? पिन. अब पिन किसको पता? क्या एटीएम को पता होती है सभी की पिन? दुनिया के जितने एटीएम है सबको सभी की पिन पता है क्या? नहीं है पता. वो कहाँ जाएगा? उस पर्टिकुलर जो आपका कार्ड था. जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास एसबीआई है का अकाउंट है, और एसबीआई में मैंने जिस भी बैंक का, जिस भी सर्विसेज का, साइरस का है, मॉन्स्टर का है, जो जो भी ऐप है, वो कार्ड है. वो कहाँ जाएगा? उसके सर्वर पे चेक करेगा कि भाई ये कार्ड नंबर है और ये पेन एंटर कर रहा है कि ये दोनों मैच हो रहे हैं. मैच हो रहे हैं तो वो आपको परमिशन देगा. परमिशन में आपने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया, तो आप जैसे ही अमाउंट लिखेंगे वो तुरंत चेक करेगा कि भाई इन्होंने 15,000 बोला है कि मुझे चाहिए, इनके अकाउंट में है 15,000, इनकी लिमिट है. हो फिर भी कभी कभी नहीं निकलते, क्योंकि लिमिट भी होनी चाहिए कि उतना निकल सकता है या नहीं निकल सकता है. ठीक है, जब सारी चीजें फुलफिल होंगी, तुरंत एटीएम आपको वो अमाउंट विड्रॉ करके दे देगा. ये ऑब्जर्वेशन आपका हुआ होगा, आई होप. ठीक है, अब तो इस चीज में क्या हुआ, तुरंत अपडेट हुआ कहां पर? आपके बैंक डिटेल में. आप कोई कहे कि सर मैंने एटीएम से निकाला और उसके बाद तुरंत मैंने इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके और कहीं ट्रांजेक्शन कर दिया, बट चूंकि आप कहीं से भी कुछ करें, तुरंत वो चीजें कहां से कनेक्ट हैं? सर्वर से, इस सेंट्रल सिस्टम से. चाहे आप एटीएम जाएं, चाहे वेबसाइट के थ्रू जाएं, चाहे कोड वगैरह के थ्रू जाएं, किसी के भी थ्रू जाएं, वो सबसे पहले कहाँ चेक होगा? अल्टीमेटली आके सर्वर पे, कि भाई आपके पास अभी कितना है. ठीक है ना? ऑन द स्पॉट कितना है, उस एंटर के साथ तब जाके वो आपको उतना अमाउंट देगा. समझे? उस एंटर प्रेस करने के टाइम पे रियल टाइम अपडेट. ऐसा नहीं है कि दो बंदे हैं, एक को दे दिया चेक पे और दूसरे को पकड़ा दिया भाई बंधु के, जाओ तुम एटीएम से निकालने की लाइन में लग जाओ, मैं यहाँ चेक से 1 लाख निकाल रहा हूँ, तुम वहां एटीएम से 50,000 निकाल लेना है अपने पास कुछ 1 ही लाख ही. कहाँ से निकल पाएगा? कई लोग करते थे जब पहले ये इतना एडवांस नहीं था, बट अभी फुल प्रूफ कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. तो ये किस तरीके की टोपोलॉजी है? जब आपको हर चीज को किससे देखना है? सेंट्रल सर्वर से. तो स्टार टोपोलॉजी, ये चीज समझ में आई. अब देखें यहाँ पे थर्ड वन, बस टोपोलॉजी. तो बस में आप देख रहे होंगे कि एक लाइन चला जा रहा है. अब इस लाइन को आप देख सकते हैं जैसे केबल का कनेक्शन का लाइन है, इलेक्ट्रिक पोल आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई का लाइन है,
इस लाइन में क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन यहाँ है, सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, जिस भी ऑर्डर में जहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही है सबके पास जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई है तो आपके घर से कनेक्ट वायर जोड़ दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपके यहाँ भी लाइट आ जाएगा। ठीक है, केबल कनेक्शन आपको लेना है लोकल एरिया से, तो भी वो लाइन जा रहा है, एक वायर कनेक्ट करेगा, आपको ज्वाइन करके प्रोवाइड कर देगा, आपके पास भी वो सिग्नल्स आने लगेंगे। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी बनी होगी यहाँ पे। अगर डाउट हो तो बताइए। Good. So three topology, ring, star and bus, they all are having their own objective based on what kind of a communication you required, what kind of a network you required, you can follow it. Clear? तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के टोपोलॉजीज को यूज किया जाता है क्योंकि उनके अपने एक अपने पैटर्न्स हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे मीडिया स्पीड एंड देयर communication kind of how things were happen. So the communication medium twisted pair wire, अगर हम देखें किस तरीके से तार या किन मीडियम्स के थ्रू आपके पास ये कनेक्टिविटी आ रही है। सो कम्युनिकेशन मीडियम फिजिकल फॉर्म में आप देखें तो ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और वायरलेस, व्हाट दे आर। सो फर्स्ट वन and transmission speed, okay, that's as well. So speeds, the widths per second, how exactly the 0 1 form, then hertz, that means once you transfer from one medium to the other medium what speed it will carry, the you can say the waves through modem के थ्रू, आप जानते होंगे modem हमने पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, आगे शायद देखेंगे कि पढ़ा है modem, शायद आगे देखेंगे, नहीं मॉडेम तो पढ़ लिया ना, 0 1 मैंने बताया था, पहले पढ़ लिया है मॉडेम। तो वो मॉड्यूलर डिमॉड्यूल 0 1 को कैसे वेव्स में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे मापा जाता है हर्ट्स में, और बैंडविड्थ किस वेव्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है या कितनी बैंडविड्थ के थ्रू, तो वो तीन तरीके से इस चीज को कह सकते हैं कि नापा जाता है या मापा जाता है इन चीजों में। ठीक है, तो बिट्स हमने बोला द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम, सो दैट्स जस्ट किधर गया, yes, so bits per second, that and this depend on the frequency, how frequency, what kind of a frequency you are using, so that frequency measured in hertz, clear, or a cycle per second. Now the next one, so twisted pair, here we will explain this combination only। अगर आप लोगों के पास कभी लैंडलाइन फोन रहे हो पुराने, तो याद है आपके पास दो वायर आते थे, ऐसे ट्विस्टेड नहीं, पेयर फॉर्म में रहता था, कभी कभी ट्विस्टेड भी, अगर वो टेलीफोन का लाइन आपने देखा हो और लैंडलाइन फोन आपके पास हो तो ऐसे ही पेयर के वायर होते थे, याद है क्या किसी को, या देखा हो किसी ने? तो ये ट्विस्टेड पेयर, इसका स्पीड बहुत कम होता है क्योंकि इसमें डेटा ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, स्पीड उसका कम रहेगा, डेटा का लॉस बहुत होता है, डिस्टरबेंस बहुत होते हैं। बट ऐसे ही जब ट्विस्टेड पेयर का जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये लैन केबल या इथरनेट केबल, अगर आपने कभी देखा हो तो लैन केबल आपके अपने क्लासरूम्स में है, इस कलर्स में आपने देखा होगा, दूसरे भी कलर हो सकते हैं, बट पेयर्स इसी सेट में देखे होंगे।
अगर देखा हो तो, नहीं देखा हो तो जहां से ज्वाइंट करते हैं वहां आप देखना कि इतने पेयर्स में वायर आ रहे होते हैं, इन सब का अपना अपना रोल होता है, जिससे तकरीबन इसकी स्पीड क्या हो जाती है, यस पोडियम के पास, तो इसकी स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। सेकंड कैटेगरी जो आता है ये आप सबके पास है। कैसे? या तो आपके पास केबल कनेक्शन होगा टीवी में, नहीं होगा तो डीटीएच कनेक्शन होगा। दोनों में ही जो केबल यूज होती है वो कोएक्सियल केबल ही यूज होती है। इसमें इनसाइड कॉपर वायर, और ये इंसुलेशन होगा, थिक इंसुलेशन, मोटा एक इंसुलेशन होता है व्हाइट कलर या डिफरेंट कलर का, देखा हुआ आपने। उसके ऊपर एक नेट रहता है कॉपर का या दूसरा भी मीडियम हो सकता है। फिर उसके ऊपर ये आउटसाइड लेयर जो हमको दिखता है ब्लैक या व्हाइट कलर में, ये केबल की कैपेसिटी क्या हो जाती है कि डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इसकी अच्छी खासी कंपैरेटिव टू द लास्ट वन बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए आप एच डी चैनल्स, अदर फॉर्मेट बड़े आसानी से देख पाते हैं। थोड़ी आपने बहुत देखा होगा फाइबर ऑप्टिक्स। आप जैसे रोड पे आपने देखा होगा माइलस्टोन्स के साथ साथ कहीं कहीं आपने छोटे माइलस्टोन जैसे ही स्टोन्स देखे होंगे, उसमें लिखा होगा आइडिया, ओएफसी, बीएसएनएल, जियो, ओएफसी, सो ऑप्टिकल फाइबर केबल, कि इसके नीचे से अंडरग्राउंड लेवल पे ऑप्टिकल फाइबर गई हुई है। ये तो देखा होगा। इसको अगर आप देखें तो शायद आपने स्टेशन, बस स्टैंड या फेयर्स में कुछ समय पहले तक मुझे याद है, जैसे हम फ्लावर प्लॉट आता ना, वैसे ही करके स्टेशन में ऐसे थ्रेड्स आते थे, नीचे उसमें एक लाइट लगी होती थी और ये पूरे ऐसे इल्यूमिनेट होते थे टॉप सुन के। कभी देखा हो बचपन में, मतलब आप आज के 5-7 साल पहले, एकदम बचपन भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, फेयर में देखा हो कहीं, या ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ क्योंकि ये आपने देखा होगा, सच में ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फाइबर ऑप्टिक्स ही है, मैं तो बता रहा हूँ कि इस तरीके से उन चीजों को यूज किया जाता था। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, कि अभी हम इसका एक वीडियो भी देखेंगे थोड़ा कि किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। ये चीज आप यहां से वहां ट्रांसफर करिए एज इट इज, मतलब आप यहां से अमेरिका भेज दीजिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लॉस होगा, वो लॉस को भी थ्रू मशीन्स या इक्विपमेंट के थ्रू कवर करके ऑलमोस्ट ऑन अ सेम टाइम, कुछ सेकंड्स का डिफरेंस हो सकता है और ये लाइट वहां पहुंच जाएगी। जैसे आप देखते होंगे अपने यहाँ की घर की जो लाइट है एक रूम से दूसरे में भी ज्यादा नहीं जाती, टॉर्च का हम यूज करते हैं या अपने टू व्हीलर फोर व्हीलर में लैंप्स का यूज करते हैं, तो उसका भी फोकस एक लिमिटेड रेंज तक ही जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हो जाता है, डिटोरिएट होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है और खत्म होने लगता है। इसमें अगर आप यहाँ से दिल्ली भी अगर आप भेज रहे हैं, तो यहाँ आपने टॉर्च को ऑन किया एक कॉर्नर यहाँ अंदर कहीं जहां से भी इसका एंड होगा, इमीडिएटली इट विल बी अवेलेबल इन दिल्ली, इमीडिएटली, दैट टू विदाउट एनी लॉस, तुरंत वहां पे वो लाइट जल जाएगी। ये एक फाइबर ऑप्टिक्स का कैपेसिटी है। प्लस मल्टीपल कोडिंग्स के साथ एक बायर सैकड़ों कनेक्शन को कैरी कर लेता है, एक सिंगल बायर। ट्विस्टेड पेयर में कितने कनेक्शन थे, एक, घर के फोन अगर लैंडलाइन है तो एक ही फोन पे कनेक्शन आएगा, मल्टीपल फोन लगा लें बट फोन का नंबर एक ही होगा, रिंग सभी जगह बजे, वो बात अलग है। जब आप बात कर रहे हैं कोएक्सियल केबल की, तो कोएक्सियल केबल में आप देखते होंगे मल्टीपल चैनल्स, 500 चैनल्स के भी डेटा एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं, 500 1000 चैनल, आप नेट भी उसी में चला रहे हैं। होता है आपके घर पे भी डीटीएच होगा, आप चैनल स्विच करिए तुरंत आने लगता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं अब दूसरे का कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा उसके बाद आएगा। Which one, Manish? How you are saying? Good noon, sir. Yeah, good. Sir, you told that as we switch on this, it will be available. It will be available instantly in Delhi. Yeah. So, any obstacles that will hinder this? No. Generally not, but there are a certain boosters required in the technology side. In the next session, I will show you one video that will explain you how exactly this happens and without any disturbances reach to the far away corners. So you may be happy by knowing this, that India is the world's largest optical fiber cable country,
those who are not only having optical fiber in India, Indian companies having their own optical fiber, those who are connecting around the world. समुद्र के नीचे से रिलायंस और दूसरी कंपनियों ने बड़े बड़े ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स डाले हुए हैं, बड़ी बड़ी केबल जो दुनिया भर को नेट प्रोवाइड करवा रहे हैं या कनेक्शंस दे रहे हैं, सी के अंडर द सी हम बोल रहे हैं उसके थ्रू। तो उस प्लेटफॉर्म को मैं बताऊंगा कि चूंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस है तो एक नेचुरल कभी कभी जो इसकी स्पीड या लाइटनिंग है जो डाउन अगर हो रही होती है तो कैसे उसको रीबूस्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो रीबूस्टर ये नेक्स्ट, आज तो इतना टाइम है नहीं, तो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट हम इसका वीडियो ही देखेंगे कि किस तरीके से एक नॉर्मल सा ट्रांजेक्शन, जैसे आप अगर मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं या हम आप भी बात कर रहे हैं, तो कैसे ये ट्रांजेक्शन एक से दूसरी जगह पहुंच रहा है, इसको भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी तक के लिए जो हम डिस्कस किए, क्या उसमें कोई डाउट है? इसका पैटर्न आई विल डिस्कस यू इन नेक्स्ट सेशन। वीडियो के थ्रू आप समझ पाए। ओके, थैंक यू।